In this video, I'll discuss the topic called deadlock detection. In the last videos, we have discussed how to prevent a deadlock, then how to avoid the deadlock. Now the third option is we cannot avoid it, we cannot prevent it, and whenever in the time being we'll feel like system is in deadlock or not, we will check it through some algorithm, and once we are sure that there is a deadlock that has occurred, then we will through a recovery algorithm we will recover from the deadlock. So it is like deadlock detection and recovery. In this particular video, we'll just focus on how to detect whether the system is in deadlock state or not. It's just like you're not taking care of your health and not preventing or avoiding the disease, and at the end you have to go to the doctor for detection whether you are suffering from a particular disease or not. So it is like we are going to check whether system is in safe state or it is in deadlock state. So there are two types of algorithm in this. Single instance of each resource type. Now it is very similar to we have done in avoidance, in where we are saying that each resource type is having single instance. That means हर एक resource की single copy है हमारे पास. तो उसके लिए जो हमने algorithm वहाँ यूज़ करा था, that is resource allocation graph. अब उसी को चेंज करके हम बना देते हैं वेट फॉर ग्राफ. इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर ग्राफ एल्गोरिदम. इन दिस केस वी विल सी फर्दर कि कैसे हम एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, देन इन दैट केस देयर इज अनदर एल्गोरिदम कॉल्ड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम. इट इज़ मेड फ्रॉम एक्चुअली बैंकर्स एल्गोरिदम को चेंज करके बनाया है. ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम को चेंज करके बनाया. सो यू मस्ट सी द प्रीवियस वीडियोस in order to understand the concepts in better. So in this case we'll first do the elaboration of all the topic, then with examples we'll do these two algorithms. Now what do you mean by deadlock detection? If a system does not employ either a deadlock prevention or a deadlock avoidance algorithm, then deadlock situation may occur. That means अगर आप prevent भी नहीं कर रहे हो deadlock को और avoid भी नहीं कर रहे हो previous two topics, that means you will have a deadlock situation. So वो occur हो सकती है हमारे system में. तो in this environment यहाँ पे हम precautions नहीं ले रहे हैं, we are not taking necessary measures to avoid the things. तो वहाँ पे फिर हमें algorithm चाहिए to examine the state of the system to determine whether deadlock has occurred or not. For example, अगर हमने अपनी हेल्थ की केयर ही नहीं करी, then we need to go to the doctor to examine whether we are suffering or we are fine. And अगर हमारी कोई डिजीज़ डेडलॉक अकर हो गया है सिस्टम में, तो we need to recover from it. तो हमें उसके लिए भी एक एल्गोरिदम चाहिए which will help us to recover from that deadlock state. So the very first algorithm is for the single instance of each resource type. In this case, every resource in a system will have single copies. Then we can define this algorithm called wait for graph, and which is a variant of resource allocation graph. Resource allocation graph में minor changes करके हम wait for graph बना देते हैं, और wait for graph में अगर cycle बन रहा है तो we'll say कि system में अभी deadlock situation occur हो गई है. So कब कैसे बनाते हैं हम wait for graph? We obtain this by removing the resource nodes and collapsing the appropriate edges. हमने अपने ग्राफ में resource edges नहीं लेके आनी है. resource nodes कौन सी थी? resource node थी जो हमारे पास rectangular थी, ये हमने नहीं, इसको हमने remove कर देना है resource को, और उनकी edges को collapse कर देना है आपस में. इसमें क्या है? an edge from pi to pj. एक जो प्रोसेस है दूसरे प्रोसेस को पॉइंट करेगा वेट फॉर ग्राफ में. इट मीन्स कि वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज की वेट कर रहा है जो पीजे के पास है. दैट मीन्स पी आई इज़ वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज दैट इज़ करेंटली हेल्ड बाय पीजे. देन देयर विल बी एन एज फ्रॉम पी आई टू पीजे. इन अदर वर्ड्स, पी आई जो इज़ पॉइंटिंग टू पीजे इफ़ पी आई इज़ पॉइंटिंग टू आर क्यू एंड आर क्यू इज़ पॉइंटिंग टू पीजे. तो ये जो है ये पिछले ग्राफ में था हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स एजेस भी थी. रिसोर्स एज क्या? पी आई जो है रिसोर्स की वेट कर रहा है और रिसोर्स किसी दूसरे को एलोकेटेड है. इसको कंबाइन करके एक एज बना दी जाती है फ्रॉम पी आई टू पी जे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द प्रीवियस ग्राफ विच वी हैव ऑलरेडी डन, and this is wait for graph for this particular
ग्राफ। इन दिस केस हम एज कब बनाते हैं? फॉर एग्जांपल जो हमारा P2 है इन दिस सिनेरियो, सिर्फ हम इतना ही ग्राफ देख लेते हैं। P2 जो है वो R4 को रिक्वेस्ट कर रहा है और R4 करंटली P3 के पास है, तो हम सीधा ही वेट फॉर ग्राफ में P2 से पॉइंट कर देंगे P3 की तरफ। सिमिलरली इन दिस ग्राफ P3 जो है वो R5 को रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन R5 इज असाइंड टू P4, सो देयर विल बी अ डायरेक्ट एज फ्रॉम P3 टू P4। बाय दिस वे हमने रिसोर्स एजेस रिमूव कर देनी है अपने ग्राफ में से। दिस इज़ द प्रीवियस एल्गोरिदम जो कि अवॉइडेंस में यूज़ होता है, हमारी डिटेक्शन में यूज़ होता है दिस वेट फॉर ग्राफ। और दिस एग्जाम्पल शोज हाउ वी कैन कन्वर्ट द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टू अ वेट फॉर ग्राफ। सिंपली रिसोर्सेज को रिमूव कर देना है और प्रोसेसेस के बीच में एज तब होगी अगर एक प्रोसेस कोई ऐसे रिसोर्स की वेट कर रहा है जो कि दूसरे ने होल्ड किया है। एंड इफ़ देयर इज़ अ साइकिल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, देयर आर 2 cycles, so if there is a cycle it means system is in deadlock state. How we can say that? Because there is only single instance, क्योंकि एक ही कॉपी है हर रिसोर्स की, और अगर एक के पास होल्डेड है वो रिसोर्स तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। एंड इफ़ दैट वेट इज़ इन साइकिल मोड देन there must be a deadlock. That is only for the single resource, single instance. Now the second algorithm is for multiple instances of resource type, when we have the resources where each resource is having multiple copies. So उस केस में हमारा रिसोर्स एलोकेशन जो वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिदम था वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बिकॉज साइकिल डज नॉट मीन दैट देयर इज़ अ डेडलॉक। सो इन दिस केस ये बैंकर्स एल्गोरिदम जो हमने प्रीवियस वीडियोस में करा है, बैंकर्स एल्गोरिदम को चेंज कर दिया है। इट इज़ वेरी सिमिलर, सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बैंकर्स एल्गोरिदम सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर एंड इट इज़ मच मोर ईजी देन दैट। इन दिस केस वी आर लुकिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, लाइक हम प्रेजेंट में ही हैं और हमने अभी देखना है कि डेडलॉक है या नहीं। हमने पहले कोई किसी से नीड या मैक्स उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कहीं किसी रिसोर्स प्रोसेस से नहीं पूछा है। सो इन दिस केस हम प्रेजेंट मोड में ही बात करेंगे, तो इसमें जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कम हैं। इस केस में अवेलेबल तो सेम है बैंकर्स के जैसे कि कितने हमारे रिसोर्सेज कि कितने इंस्टांस अवेलेबल हैं, तो जितनी वेक्टर की लेंथ होगी उतने ही नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। एलोकेशन का मतलब है करंटली किस रिसोर्स के पास कौन कौन से रिसोर्सेज, किस प्रोसेस के पास कौन से रिसोर्सेज की कितनी कॉपीज़ हैं होल्ड करी हुई हैं, सेम एज बैंकर्स एल्गोरिदम। रिक्वेस्ट इज़ ऑल्सो लाइक इन दिस केस, वहाँ पे हम रिक्वेस्ट को सिंगल रिक्वेस्ट के जैसे शो करते थे, यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली है रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। इसमें क्या है, हम हर एक प्रोसेस का रिक्वेस्ट शो करेंगे कि कौन सा प्रोसेस कितने इंस्टांसेस आस्क कर रहा है किस रिसोर्स की। सो विल सी नेक्स्ट। इन दिस एल्गोरिदम क्या है, दैट इज़ ऑल्सो सेम एज बैंकर्स कि वर्क लेना है और फिनिश लेना है। वर्क को अवेलेबल से इनिशियलाइज करना है और फिनिश हमने सिर्फ उनका ही ट्रू करना है जो कुछ डिमांड कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ एलोकेशन है ही नहीं है, किसी को कुछ मिला ही नहीं हुआ है अभी किसी प्रोसेस को, तो हमने उसको ट्रू मानना है, वो हम मान लेंगे कि वो फिनिश हो गया है। और अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है हमने, तो हमने उसका फिनिश फॉल्स करना है, सेम एज द प्रीवियस। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी एल्गोरिदम चलाना है और कुछ नहीं है। सेफ्टी एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे थे, हम एक ऐसा इंडेक्स आई ढूंढ रहे थे कि जिसका फिनिश फॉल्स हो और जिसकी रिक्वेस्ट हमारे वर्क से कम है। तो पिछले केस में हम देख रहे थे नीड, इस केस में हम देख रहे हैं रिक्वेस्ट कि अभी उसको कितनी चाहिए, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट। सो रिक्वेस्ट जितनी उसने करी है हम एक मैट्रिक्स में सब प्रोसेसेस की लिखेंगे। अगर किसी की वर्क से कम है तो हम इसमें ऑप्टिमिस्टिक मोड एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं कि मान लो ये रिक्वेस्ट के बाद प्रोसेस को और कुछ नहीं चाहिए होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं भी हो सकता है इस रिक्वेस्ट के बाद प्रोसेस को और रिसोर्सेज की डिमांड हो, तो उस केस में फिर से डेडलॉक बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रन करेंगे तब डिटेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से देखते हैं कि अगर रिक्वेस्ट इतनी हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वो डिमांड नहीं करेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में बैंक ने किसी भी कस्टमर से ये नहीं पूछा हुआ
कि आपको मैक्सिमम कितना कैश चाहिए है। इस केस में बैंक उनको उनकी रिक्वेस्ट अलाउ करती जा रही है एंड बीच बीच में चेक रख रही है कि क्या उस डेडलॉक तो नहीं अकर हो रहा, क्या कैश है उसके पास सफिशिएंट फॉर द अदर कस्टमर्स। तो यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट है तो कस्टमर्स ने ये नहीं बताया हुआ बैंक को कि उनको मैक्सिमम कितना कैश चाहिए होगा, दे आर जस्ट गिविंग देयर रिक्वेस्ट ऑन द मोमेंट। और बैंक क्या चेक कर रही है कि अगर किसी कस्टमर ने इतना रिक्वेस्ट कर दिया और उसके पास उतना कैश है तो वो लेट से उसको जब उसने एलोकेट कर दिया और उसके बाद कस्टमर फिर और डिमांड नहीं करेगा और ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का मतलब है कस्टमर के जितने पास पहले पैसे लिए हुए हैं वो भी वापस कर देगा बैंक को। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ऐसा नहीं भी हो सकता। प्रोसेस इसके बाद फिर से रिक्वेस्ट कर सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। तो उस केस में इस बारी हम सेफ हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से एल्गोरिदम चलाएंगे तो फिर से डेडलॉक शो कर देगा। सो इन दिस केस हमें एज्यूम कर रहे हैं कि वंस उसका वर्क हमने उसको एलोकेट कर दिया रिक्वेस्ट तो वो ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो जाएगा तो वर्क में उसकी जो एलोकेशन थी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की एलोकेशन हमने अपने अवेलेबल में ऐड कर लिया और उसको फिनिश कर दिया। फिर गो टू स्टेप 2, फिर हम फिर से कोई ऐसा प्रोसेस देख रहे हैं जिसकी रिक्वेस्ट कम है एंड अप टू सो ऑन। अगर हमारी सेफ्टी सीक्वेंस बन गई, सारे प्रोसेस फिनिश हो गए हैं, ट्रू हो गया है तो डेडलॉक नहीं है। अगर किसी भी प्रोसेस का फिनिश फॉल्स रह गया दैट मीन्स नाउ करंटली वी आर फेसिंग इट डेडलॉक सिचुएशन। सो इट इज़ लाइक बैंक इज़ नॉट टेकिंग एनी प्रीवियस मेजर्स ऑन द टाइम। उसको लग रहा है अब डेडलॉक अकर हो गया है, now the bank will go for the recovery. Now in this case, this is an example of this deadlock detection algorithm. In this case we are having allocation matrix, request matrix and available. So in this case the scenario is same as we have done in bankers algorithm, safety algorithm we will run on this. We will check कि अभी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है दैट इज़ ज़ीरो एंड अगर हम इसको ओवरव्यू देखेंगे तो हम बोलेंगे कि वी आर इन डेडलॉक, बट वी आर नॉट इन अ डेडलॉक स्टेट बिकॉज सम रिसोर्सेज डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग। जिन कुछ रिसोर्सेज को कुछ चाहिए ही नहीं है। सो वी आर एज्यूमिंग कि पहले P1 P0 है जो वो ख़त्म हो जाएगा अगर, तो उसके पास जो एलोकेशन थी 0 1 0 वो वापस कर देगा। दैट इज़ 0 1 0 हमारे पास अवेलेबल में कॉपी हो जाएगा। तो हमारा अवेलेबल इस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P0 इट विल बी 0 1 0। फिर उसके बाद अगर P2 लेट से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि अगर इसको भी कोई रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो लेट से ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये दिस विल बी एडेड टू आवर अवेलेबल वर्क। सो इन दिस केस इट विल बी 3 1 3। अब हमारे पास 3 1 3 हो गया, तो अब इसके पास वी कैन कंप्लीट दिस P3 बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट हमारे रिसोर्सेज में से फुलफ़िल हो जाएगी, तो उसके रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगे। फिर P1 देन फिर P4 एंड दिस विल मेक अ सेफ्टी सीक्वेंस। इन सम सिनेरियोज हमारा अगर सेफ्टी सीक्वेंस नहीं बनता है तो दैट मीन्स सिस्टम इज़ इन डेडलॉक। इन दिस सिनेरियो द सिस्टम इज़ सेफ, दैट मीन्स देयर इज़ नॉट एनी डेडलॉक स्टेट बिकॉज वी कैन हैव अ सेफ्टी सीक्वेंस. To understand it in a better way, I recommend you to watch the Banker's algorithm, safety algorithm, and in that example this will be clarified, but there are some minor changes. Here there is not a need matrix, वहाँ पे need matrix था क्योंकि हम पहले पूछ के need calculate कर चुके हैं। यहाँ पे हमने कुछ पहले से कोई recommendation नहीं लिया है, so we are going for the present one. Otherwise the procedure is same. Now next question which comes in our mind that when should we invoke the deadlock detection algorithm, like how often the deadlock likely to occur and how many processes will get affected. So कहते हैं ये जो एल्गोरिदम है डिटेक्शन की, ये कितनी बारी कब हमें इसको रन करना है कि डेडलॉक है या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियोज कि कितना आपके सिस्टम में डेडलॉक अकर होता है। अगर बहुत ज़्यादा अकर होता है तो हम उसको ज़्यादा बारी रन करेंगे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, एंड कितने प्रोसेसेस इफेक्ट होते हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस आर इफेक्टिंग, मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर इफेक्टिंग, तो हम इसको ऑब्वियसली ज़्यादा बारी डिटेक्ट करेंगे। अदरवाइज डिपेंड अपॉन द सिनेरियो वी कैन चेक कि कब हमने डिटेक्ट करना है डेडलॉक को, कब हमें डेडलॉक को डिटेक्ट नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स, and if you have any doubt please type in the comment section. Thank you.